Hello students, today we will be discussing module 1 introduction topic we were discussing in the earlier slides, and the course code of research methodology is BBA 3304. Uh, in the previous topics we have discussed about the research process. As we have discussed, key research process is basically the steps which are involved in conducting any research process. That systematic steps, those all steps and process is being included in research process. So today we'll be continuing the further topics of research process. That was earlier we have discussed about the first three steps. That was first was defining the research problem, and second one was about the review literature that we have discussed, and the third one was developing the hypothesis, that is assumptions. So these were the first three steps, and now we will discuss the further topics of research process. And now fourth step which is involved in research process is determining the sample design. Okay. So being a researcher, first of all, if we have to conduct the research process effectively, then first of all we have to identify the research problem, and after identifying the research problem we have to uh, prepare us you can say prepare a summary or synopsis of the whole report. So for that purpose we have to review the previous literature, that is we have to review the previous findings if available, or we have to review the concepts and theories, and on the basis of those review of those we try to prepare a synopsis of the whole report. And then third step was developing the hypothesis, that is to develop the assumptions. uh, so basically the whatever assumptions we are assuming in research process, that hypothesis or assumption or statement should be derived in a clear term so that we can further verify the research process. And the fourth step of research process is determining sample design. So here we will discuss ki what do you mean by the term sample, and what is the importance of sample in research process, and what are the various type of sampling. So research process, first of all we have to now fourth step was to determine the sample. Now for conducting or for data collection purpose, first of all we have to select the sample. So what is sample? First of all we should know from where we have to select the sample. So sample of certain individual or items that we select during research process is a very important for the researcher. Why? Because whatever data we will collect for the research process or for solving the research problem, that we will that data collection part will be done from sample. So sample is what? Sample is the selection of few individual items from the population से जब हम कुछ लोगों का few individuals को हम selection करते हैं तो उससे हम sample बोलते हैं. So what is population? All the items, as I mentioned in the slide, you can see in the first line, all the items under consideration in any field of inquiry. Okay, so if we are doing any kind of inquiry, so if we are considering all the items means all the individuals of that for any inquiry purpose, so that will constitute a universe or population, that will be known as population or universe. Okay, so a complete enumeration of all the items. Enumeration means a kind of inquiry or survey, a complete survey when we are doing of all the items means all the individuals in the population, it is known as सेंसस इंक्वायरी. तो जब हम पॉपुलेशन के सारे ही एलिमेंट्स को, सारे आइटम्स को उनका कंप्लीट इंक्वायरी या इनॉमिनेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसस इंक्वायरी. इट इज अ काइंड ऑफ इंक्वायरी एंड वी आर कंसिडरिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज census inquiry. So the researcher must decide the way of selecting a sample, or what is popularly known as sample design. ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, फर्दर कंडक्ट करने के लिए we have to decide the way of selecting a sample. तो उसके लिए हमें वे डिसाइड करना होगा कि हमें कैसे सैम्पलिंग करनी है. तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होती है, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग डिजाइन. तो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है और सैंपल में कितने लोगों को सेलेक्ट करना है पॉपुलेशन से, उस प्रोसेस को हम सैंपल डिजाइन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ सैंपल डिजाइन इज अ डेफिनेट प्लान. ठीक है, सैंपल डिजाइन क्या है? सैंपल इज अ डेफिनेट प्लान दैट रिसर्चर इज डिटरमाइनिंग बिफोर एनी डेटा आर एक्चुअली कलेक्टेड. ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने से पहले जो भी हम प्लान करते हैं
कि हाउ वी हैव टू कलेक्ट द डेटा फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। तो गिवन पॉपुलेशन में सपोज 1000 इंडिविजुअल्स हैं और उनमें से हमें कितने लोगों को सेलेक्ट करना है और उसके बेसिस पे डेटा कलेक्शन करना है। इस प्लान को जो हम प्लान करते हैं रिसर्चर, दैट प्लान इज नोन एज सैंपल डिजाइन। दस द प्लान टू सेलेक्ट 12 ऑफ अ रिसर्च मेथोलॉजी। ठीक है, अब हमने क्या प्लान किया है कि हम 12 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, select 12 of 15 cities 200 drug stores। ठीक है, तो हमने प्लान क्या किया कि हम 12 लोगों का सैंपल लेंगे और 15 सिटीज के 15 सिटीज में से हम 12 लोगों का सैंपल लेंगे और जो 200 ड्रग स्टोर से हम लेंगे। ठीक है, जो ड्रग स्टोर्स होते हैं इन अ सर्टेन वे कॉन्स्टिट्यूट अ सैंपल डिजाइन। ठीक है, तो 15 सिटीज में 200 ड्रग स्टोर्स हैं जहां से हम 12 लोगों को सेलेक्ट करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए। तो वो ये हमारा क्या है, ये हमने एक प्लानिंग की है जिसको हम सैंपल डिजाइन बोलेंगे। तो सैंपल्स कैन बी इधर प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब जो सैंपल्स हम करते हैं सेलेक्ट करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है, सेकंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल डिजाइन, दैट वी विल डिस्कस इन दिस नेक्स्ट स्लाइड। So here I have mentioned a sample can either be probability sample or non probability sample। ठीक है, now we will discuss ki what is the difference between probability and non probability। as you already know what is the meaning of probability। probability means कि जहाँ पे ये probability होती है कि देयर इज अ नोन प्रोबेबिलिटी कि जितने भी आइटम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो उनकी मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है कि वो सभी सारे इंडिविजुअल्स सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस हियर कि विद प्रोबेबिलिटी सैंपल ईच एलिमेंट हैज अ नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मींस जहाँ पे जितने भी लोगों को, जितने भी इंडिविजुअल्स को या जितने भी आइटम्स को हम सैम्पलिंग में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये पहले से ये चांसेस होती है कि हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। बट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल डू नॉट अलाउ द रिसर्चर टू डिटरमाइन दिस प्रोबेबिलिटी। मगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में रिसर्चर ही कैन नॉट, पहले से ही कैन नॉट डिफाइन कि हर एक सैम्पलिंग जो भी इंडिविजुअल्स को सैंपल में इंक्लूड कर रहा है तो वो सबकी पहले से नोन नहीं होता है कि हर एक इंडिविजुअल सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। तो जहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि हर एक आइटम या हर एक इंडिविजुअल सैंपल में सेलेक्ट होगा, वो प्रोबेबिलिटी हो गया। और जहाँ पे इस तरह के कोई भी चांसेस नहीं होती हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन से वो सैंपल में इंक्लूड होगा, तो वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। नाउ प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर दोज बेस्ड ऑन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से टाइप्स आते हैं सैम्पलिंग के? सिंपल रैंडम आता है, दूसरा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स, प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आती है। इसमें पहला सिंपल रैंडम आता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे हम रैंडमली किसी पॉपुलेशन से किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ठीक है, और इस तरीके की चीजें वो रैंडमली किसी को सिलेक्ट। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आता है, स्ट्रैटिफाइड आता है, क्लस्टर आता है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल या आइटम जो हम सैम्पलिंग में सेलेक्ट करना चाहते हैं उनका वो इक्वल चांस नहीं होती है कि सारे ही इंडिविजुअल्स जो है सैंपल में हमारे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। तो इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स आता है। पहला आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पल टेक्निक्स। नाउ these all types of sampling design we will discuss in the next slide। that is, first one is probability samples। ठीक है, as I have discussed कि with probability samples each element means whatever individual या items we are selecting for the sample has a known probability of being included in the sample। मतलब जहाँ पे हर एक individual element का एक known chance होती है, known probability होती है कि वो sample में include होगा। but non probability sample do not allow the researcher to determine this probability or chances। Now probability samples are those based on simple random sampling, systematic stratified cluster, whereas non-probability sample are those which are based on convenience, judgment and quota। तो basically probability में आपके types जो आते हैं वो आता है random, systematic, stratified, cluster and area। cluster and area is same thing। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट वन इज डेलिबरेट सैम्पलिंग। डेलिबरेट सैम्पलिंग क्या होता है? डेलिबरेट सैम्पलिंग जो होता है इसको हम
ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप होता है और इसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, पर्पसिव एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्पसिव एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड इट इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जहाँ पे वी कैन नॉट डिटरमाइन कि ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी selected in the sample. So this sampling method involve purposive or deliberate selection of particular units of universe। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि हम जो सेलेक्ट करते हैं उसका एक पर्पस, सिलेक्शन जो हम करते हैं सैम्पलिंग के लिए उसका एक पर्पस होता है कि हम पर्टिकुलर यूनिट्स को, यूनिवर्स या पॉपुलेशन के पर्टिकुलर यूनिट्स को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सैम्पलिंग में तो व्हेन अ पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द सैंपल बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो जब हमारा पर्पस क्या होता है कि हम अपने एसेसिबिलिटी या कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग में इंक्लूड करने के लिए, तो वो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। कन्वीनियंस मीन्स अपने पर्पस या अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर ईज ऑफ एसेसिबिलिटी मतलब हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर हम पॉपुलेशन में से कुछ एलिमेंट्स को सैंपल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगा। For example, if we can take an example here, if a researcher wishes to secure data from say gasoline buyers, तो अगर रिसर्चर जो है डेटा कलेक्ट करना चाहता है फॉर एग्जांपल पर्पसेस फ्रॉम गैसोलीन बायर्स, तो आप एक्सेसिबिलिटी या कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो गैसोलीन बायर से डेटा का कलेक्शन करेगा। सो ही में सेलेक्ट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पेट्रोल स्टेशंस। तो गैसोलीन बायर से डेटा कलेक्शन के लिए वो कुछ पेट्रोल स्टेशंस सेलेक्ट करेगा, फिक्स्ड पेट्रोल स्टेशंस, और वहां से वो इंटरव्यू लेगा बायर्स का। So this would be an example of convenience or you can say deliberate sampling of gasoline buyers, जहाँ पे जो हमने डेटा कलेक्शन किया है वो गैसोलीन बायर से किया है, तो उसके लिए हमने पहले से ही कुछ फिक्स्ड पेट्रोल स्टेशन डिसाइड किए हैं जहाँ से हम इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट करेंगे। सो एट टाइम सच अ प्रोसीजर में गिव एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, वेरी बाइज्ड रिजल्ट particularly when the population is not homogeneous। तो इस तरीके के प्रोसीजर में हमें बहुत ही बाइज्ड रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, जब हमारा पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस, जब हमारा पॉपुलेशन होमोजेनियस नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड इन जजमेंटल सैम्पलिंग द रिसर्चर्स जजमेंट इज यूज्ड। ठीक है, और जजमेंटल सैम्पलिंग में जो यहाँ पे हम जो भी इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो उसमें रिसर्चर का जजमेंट लिया जाता है फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स विच ही कंसिडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग के लिए जितने भी लोगों का सैम्पलिंग लिया गया है, तो बेसिकली वो किस पे बेस्ड होता है, रिसर्चर के जजमेंट पे बेस्ड होता है कि वो कितने आइटम्स को सेलेक्ट करेगा पॉपुलेशन में से। Now, for example, a judgment sample of college students might be taken. Now, another example of deliberate or you can say जजमेंटल एंड पर्पसिव सैम्पलिंग इज कि हम एक सैंपल ले सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स का, हम ले सकते हैं टू सिक्योर रिएक्शंस टू अ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज अगर कॉलेज में हमने कुछ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट किया है, तो अगर वहां से हमें लोगों का डेटा कलेक्शन करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग कॉलेज स्टूडेंट से सैंपल ले सकते हैं कि उस पर हम जो भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग इज यूज्ड ऑफन फ्रिक्वेंटली इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो बेसिकली जो हम ये जजमेंटल सैम्पलिंग यूज करते हैं, तो इसको हम जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं। क्वालिटेटिव मतलब जहाँ पे कुछ क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड रिसर्च हम जब भी करते हैं, और where the desire happens to be to develop hypothesis rather than to generalize to larger populations। ठीक है, जहाँ पे हमारा डिजायर क्या होता है कि हम कुछ assumptions डेवलप करेंगे rather than to generalize to larger populations। ठीक है, तो this was deliberate sampling। So the deliberate sampling is a type of non probability sampling because यहाँ पे जो हम सैम्पलिंग करते हैं वो रिसर्चर के जजमेंट के बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले से ही प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि वी विल ऑल द आइटम्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द सैंपल, क्योंकि यहाँ पे हम जजमेंट के बेस पे ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करते हैं। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप आता है। नेक्स्ट वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, जहाँ पे हर एक एलिमेंट का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल में सेलेक्ट होगा। तो किसी का भी चांस आ सकता है, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल होता है, और इसको हम चांस सैम्पलिंग भी कहते हैं। वेयर ईच एंड एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन द सैंपल। मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल में सेलेक्ट होगा।
and each one of the possible samples in case of finite universe, मतलब जहाँ पे हम individuals को count कर सकते हैं, finite universe has the same probability of being selected. Now for example, if we have to select a sample of 300 items, now if अगर हमें 300 items का sample select करना है from a universe or population of 15,000 items, ठीक है, then we can put the names or numbers of all the 15,000 items on a slip of paper. Simple random sampling में क्या होता है कि जहाँ पे population का हर एक एलिमेंट का या इंडिविजुअल का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है, कि सपोज मान लीजिए हमें 300 आइटम्स का सैंपल सेलेक्ट करना है और पॉपुलेशन में 15,000 इंडिविजुअल्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सारे 15,000 आइटम्स को के नेम्स या नंबर्स को स्लिप्स ऑफ पेपर पे लिख सकते हैं और उस पे फिर हम एक लॉटरी सिस्टम कंडक्ट कर सकते हैं, और लॉटरी सिस्टम में होगा कि 15,000 में किसी की भी चांसेस हो सकती है कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है. तो यूजिंग द रैंडम नंबर टेबल इज अनदर मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. टेबल यूज करके भी हम रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं. टू सेलेक्ट द सैंपल ईच आइटम इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 15,000. ठीक है. एक दूसरा तरीका है कि टेबल के यूज करके भी कर सकते हैं. उसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर 15,000 से हमें 300 का सैंपल लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को एक नंबर असाइन करेंगे 1 से 15,000 तक. देन 305 डिजिट रैंडम नंबर्स आर सिलेक्टेड. फिर उस टेबल में से हम 300 कोई भी नंबर्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे. So to do this, we select some random starting point and then a systematic pattern is used in proceeding through the table. ठीक है. तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी वी कैन सेलेक्ट सम रैंडम स्टार्टिंग, कहीं से भी हम रैंडमली जो है कोई भी किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और कोई भी पॉइंट पर, उसके बाद हम सिस्टमैटिकली जो है किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे. तो ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हुआ कि जहाँ पे पॉपुलेशन में से किसी का भी हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस हो सकता है कि वो सैंपल में इंक्लूड हो. ठीक है. प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, लॉटरी सिस्टम है और आप टेबल का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. जहाँ पे हम रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पे डेटा कलेक्शन करेंगे. फिर नेक्स्ट टाइप है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक में जो होता है वो सिस्टमैटिक आपका बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ सैम्पलिंग है. तो इन सम इंस्टेंसेस द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ सैम्पलिंग इज टू सेलेक्ट एवरी 15th. सिस्टमैटिक मतलब एक प्रॉपर हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि अगर हम 50 लिस्ट है हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स की, तो उसमें से हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो सिस्टमैटिकली कर रहे हैं. For example, the most practical way of sampling is to select every 15th name on a list. Suppose एक लिस्ट है हमारे पास इंडिविजुअल्स की, उसमें से हम हर एक 15th नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं सिस्टमैटिकली. या मान लीजिए वन साइड ऑफ स्ट्रीट पे हर एक 10th हाउस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन. So sampling of this type is known as systematic sampling. An element of randomness is usually introduced. ठीक है. यहाँ पे randomness का element हम include करते हैं सैम्पलिंग में by using random numbers to pick up the unit with which to start. ठीक है. तो हम एक रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट करते हैं और फिर वहां से हम जो है एक सिस्टमैटिकली जो है हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हम जो इस नंबर इस पॉइंट पे जो नेम है या नंबर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे. तो दिस प्रोसीजर इज यूजफुल व्हेन सैम्पलिंग फ्रेम इज अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो इस टाइप की सैम्पलिंग कब यूजफुल होती है कि जब हमें पहले से ही पता होता है कि हमें पता होता है कि सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल है, एक लिस्ट फॉर्म में हमारे पास नेम्स होते हैं और हमें पता होता है कि हमें इतने लोगों को सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ individuals कितने हमें सेलेक्ट करने हैं. In such a design, the selection process start by picking some random point in the list and then every nth element is selected until the desired number is sequel. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के डिजाइनिंग में हमारा पहले से हमारा सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड होता है कि हमें लिस्ट में से किस पॉइंट पे को पिक करना है और उसके बाद उसी पॉइंट के मतलब मान लीजिए अगर 15th एलिमेंट हम 15th नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हर एक 15th के बाद नेक्स्ट 15th पॉइंट को या नेक्स्ट 15th एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे. तो जब तक कि हमारा डिजायर्ड नंबर सिक्योर नहीं हो जाता. डिजायर्ड नंबर मतलब मान लीजिए अगर हमें 15,000 के यूनिवर्स से 200 लोगों का सैंपल लेना है, तो 200 लोग का जब तक हम इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे. बट हमें उसमें क्या एस्पेक्ट रखना है कि हमारा जो सैम्पलिंग होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो सिस्टमैटिकली होगा. अगर हम 15th इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट 15th को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट 15th को हम सेलेक्ट करेंगे. इस तरीके से तब तक करेंगे जब तक कि हमारा डिजायर्ड सैंपल साइज अचीव नहीं हो जाता है. फिर नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो
if the population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group. ठीक है, अगर मान लीजिए एक पॉपुलेशन है जिसमें से हमें सैंपल सेलेक्ट करना है, अगर वो एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है तो वहां पे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या होता है कि पहले सबसे पहले हम पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो जिसको हम स्ट्राटा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वहां से हर एक सब ग्रुप से हम सिलेक्शन करते हैं, इसलिए इसको हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन को हम पहले डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप्स में या स्ट्राटा में डिवाइड, स्ट्रैटिफाइड मींस स्ट्राटा, स्ट्राटा मींस सब ग्रुप्स। तो पॉपुलेशन में से हम कुछ सब ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर हम सब ग्रुप से सिलेक्शन करते हैं सैम्पलिंग के लिए, इसलिए हम इसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। सो तो बेसिकली इस टाइप की सैम्पलिंग हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन में होमोजेनियस ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो in this technique the population is stratified into a number of non overlapping sub population। पॉपुलेशन को हम स्ट्रेटिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप करते हैं सब पॉपुलेशन में। ठीक है, और स्ट्राटा में सब ग्रुप एंड सैंपल आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा। फिर हर एक सब ग्रुप से हम जो है सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। देन नेक्स्ट वन इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो अभी हमने पढ़ा, उसमें जो कॉस्ट होता है रैंडम सैम्पलिंग का हर एक इंडिविजुअल सब ग्रुप से, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। कि इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाने के लिए जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको हम एक कोटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं कि वो उस कोटा के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटा से या डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप से डायरेक्टली जो है डेटा कलेक्शन करते हैं। तो इससे जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, कोटा मतलब कोटा में यहाँ पे जो है कुछ जैसे एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे वो अपना डेटा फिल करवाता है, जैसे कि एज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो एक कोटा फिल करवाते हैं, जो वो डायरेक्टली जो है डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप से फिल करवाते हैं। तो एक्चुअल सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर सैंपल बीइंग लेफ्ट टू द इंटरव्यूअर्स जजमेंट। तो जो सिलेक्शन होता है सैम्पलिंग के लिए, जितने भी एलिमेंट्स का सिलेक्शन होना है वो बेसिकली इंटरव्यूअर्स के जजमेंट पे ही छोड़ दिया जाता है, इसलिए कोटा सैम्पलिंग मतलब जहाँ पे जो डेटा कलेक्शन होता है और कितने लोगों से जजमेंट लेना है वो इंटरव्यूअर के जजमेंट पे ही बेस्ड होता है। और इंटरव्यूअर्स को सिंपली हम एक कोटा प्रोवाइड करते हैं। कोटा मतलब एक लिस्ट होता है क्वेश्चंस का, बेसिकली जो वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है, जैसे एज, ग्रुप, रिलीजन। ठीक है, और इंटरव्यूज क्या करते हैं, सिंपली उनको कोटा प्रोवाइड किया जाता है और वो डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप से डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं कि किन किन लोगों से उनको डेटा कलेक्शन करना है और उससे वो कोटा फिल करवा लेते हैं। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि जो कॉस्ट होता है सैम्पलिंग करने का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पहले हम पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर सब ग्रुप से हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो इसको कम करने के लिए हम कोटा सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्लस्टर एंड एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप है। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को ग्रुप कर देते हैं और उसके बाद देन सेलेक्टिंग अ ग्रुप एंड क्लस्टर्स। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग में पहले हम पॉपुलेशन ग्रुप कर देते हैं, उसके बाद हम ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ग्रुप्स को सेलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग में इंक्लूड करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा एक ग्रुप को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज सम डिपार्टमेंटल स्टोर्स विशेस टू सैंपल इट्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है और अगर उनको सैम्पलिंग करनी है क्रेडिट कार्ड होल्डर से, तो उसने सपोज डिपार्टमेंटल स्टोर ने क्रेडिट कार्ड जो है 15,000 कस्टमर्स को हैंड ओवर कर रखे हैं और उनसे उनको सैम्पलिंग करनी है। तो सैंपल साइज मान लीजिए 450 है, तो वो उसके लिए वो क्या करेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग करेंगे। पहले इस पॉपुलेशन मतलब 15,000 कस्टमर्स में से वो 450 का सैंपल उनको लेना है, तो इसके लिए वो क्लस्टर्स बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे और फिर पूरे के पूरे ग्रुप को ही वो सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग दिस लिस्ट ऑफ 15,000 कार्ड होल्डर्स कुड बी फॉर्म्ड इनटू 100 क्लस्टर्स। 450 का सैंपल लेना है, इसलिए 15,000 कार्ड होल्डर्स को वो क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, तो 100 क्लस्टर्स बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, 100 क्लस्टर्स बनाएंगे तो हर एक क्लस्टर में 150 लोग होंगे, तो उससे वो 450 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको पूरा का पूरा एक क्लस्टर ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हर एक क्लस्टर में 150 कार्ड होल्डर्स होंगे। तो ये आपका क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। फिर नेक्स्ट है एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग भी क्लस्टर सैम्पलिंग से ही काफी लिंक्ड है, काफी उसी तरीके से सिमिलर है। और
बस डिफरेंस क्या होता है कि व्हेन द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैपन टू बी अ बिग वन, ठीक है। क्लस्टर में तो क्या होता है कि पॉपुलेशन में से हम क्लस्टर्स बना लेते हैं और फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं। बट अगर जहाँ जिस पॉपुलेशन से हमें सैंपल लेना है, अगर वो जो ज्योग्राफिकल एरिया है अगर वो ज़्यादा है, बिग है, ह्यूज है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं कि उसमें हम एरिया सैम्पलिंग में फर्स्ट वी डिवाइड द टोटल एरिया। उसमें हम क्या करते हैं, पहले टोटल एरिया को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में, जिसको हम ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स कहते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया के वाइज पहले टोटल एरिया को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में या क्लस्टर्स में, और उसके बाद फिर हम स्मॉल स्मॉल एरियाज से रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, और ऑल द यूनिट्स इन दीज स्मॉल एरियाज आर इंक्लूडेड इन द सैंपल्स, ठीक है। फिर हर एक क्लस्टर में जितने भी स्मॉल एरियाज हैं उनको हम सैंपल में सेलेक्ट करते हैं। तो ये एरिया सैम्पलिंग हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा होता है, उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हम एरिया सैंपलिंग अडॉप्ट करते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल वेयर वी डू नॉट हैव द लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंसर्न। अगर ये का हेल्पफुल हमारे लिए कब होता है रिसर्चर के लिए, जहाँ पे हमारे पास लिस्ट नहीं है कि पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, तो पॉपुलेशन को हम ज्योग्राफिकल एरियाज वाइज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर वहां से सिलेक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का ही फर्दर डेवलपमेंट है, और बेसिकली ये जो टेक्निक होता है ये बिग इंक्वायरीज के लिए किया जाता है, और जहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा है, लाइक इन इंटायर कंट्री। और सपोज अगर इंटायर कंट्री है, एक पॉपुलेशन एरिया ही नहीं है, पूरा का पूरा इंटायर कंट्री, सपोज इंडिया है, तो उसमें हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग अडॉप्ट करेंगे। तो उसमें फर्स्ट स्टेज क्या, जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सैम्पलिंग करने की, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में बी टू सेलेक्ट लार्ज प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स। तो पहला स्टेज क्या होगा कि हम सपोज पूरा एक कंट्री है, तो उसमें सबसे पहले हम एक उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में सिलेक्शन करेंगे। पहले हम इसको स्टेट में डिवाइड करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, देन टाउन, एंड फाइनली सर्टेन फैमिलीज विद इन टाउन्स। तो पहले पूरे के पूरे कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे, फिर टाउन्स में करेंगे, फिर उसमें से डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में से हम सिलेक्शन करेंगे। तो बेसिकली मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग का ही फर्दर डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ कंट्री, तो कंट्री में हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करेंगे। फिर लास्ट वन है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सैंपल डिजाइन है, कि जहाँ पे हमें सैंपल का, हमें कितने लोगों का सैंपल लेना है वो साइज हमारा पहले से एडवांस में फिक्स्ड नहीं होता है, और उसको हम डिटरमाइन करते हैं कुछ मैथमेटिकल डिसीजंस के बेसिस पे, ठीक है, जो हम कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं सर्वे के बेसिस पे। तो बेसिकली सिक्वेंशियल सैम्पलिंग जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग डिजाइन होता है, जहाँ पे हमें पहले से ये नहीं पता होता है कि हमें कितने लोगों का सैंपल जो है डिटरमाइन करना है, पहले से हमें एडवांस में ये फिक्स्ड नहीं होता है, जो हम फर्दर बाद में कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा सिक्वेंशियल सैम्पलिंग होता है। So today we have discussed about the various type of sampling. So determining sampling design, it is a very important step of research process, which includes, first of all, we have to decide being a researcher कि what should be the sample size. Sample size means population में से हमने कितने लोगों को हम सैम्पलिंग करेंगे और किस मेथड के थ्रू करेंगे, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट टाइप्स पढ़े, मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है वो बेसिकली उसमें आपके रैंडम आते हैं, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर आता है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस होता है सैंपल में इंक्लूड होने का। नॉन प्रोबेबिलिटी में ये पहले से रिसर्चर को पता नहीं होता है कि हर एक इंडिविजुअल में से कौन सा इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो वो उसमें आपका जजमेंटल सैम्पलिंग आएगा, कोटा आएगा, कन्वीनियंस आएगा, ठीक है, जिसमें हमने अब ये डिफरेंट टाइप्स पढ़े, डेलिबरेट, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, stratified, quota, cluster, area, multi-stage and sequential sampling. So next step we will continue in further presentations, that is of the research process, and the next step we will conduct in that presentation. So thank you students for today's class.